हेलो एवरीवन। नाउ अब इस वीडियो में मैं आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। उन प्रॉपर्टीज में क्या आपको मिलेगा, कैसे उन फार्मूलों को यूज करना है। प्रॉपर्टीज फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये सारी प्रॉपर्टी कुछ आपको उसी टाइप की दिखेगी जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा है, सेम एज। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है? लीनियर प्रॉपर्टी कि इफ F1s and F2s, F1s and F2s be the Fourier transform of F1s and F2s, then Fourier transform of AF1x plus BF2x is equal to AF1s plus BF2s. This is the linear property where A and B be any constant. प्रूफ इज, देखें इसका बहुत आसान है कि सिंस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन fx is 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity fx e to power isx dx। टी के टर्म में लिखना चाहे टी के टर्म में लिखना, नो प्रॉब्लम। So f1s f of f1x 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity f1t e to power ist dt and f2s f of f2x 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity f2t e to power ist dt. So Fourier transform of A of f1x plus B of f2x, this will be equal to 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity A of f1t plus B of f2t e to power ist dt. So Fourier transform of A of f1x plus B of f2x, this will be equal to A is the constant, बीच में प्लस है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, ए विल बी कॉमन, बाहर हो गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f1t e to power ist dt।
plus b upon under root 2 pi minus infinity to infinity f2t e to power ist dt. This be a of f1s plus b of f2s. By definition it is clear, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. Now next property is change of scale property. Now next property is change of scale property. Second, change of scale property. Now change of scale property. जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था ठीक वैसे ही है कि इफ FES is Fourier transform of fx, then Fourier transform of f of ax is equal to 1 upon a f of s by a. The same property you have already proved in case of Laplace transform. वही प्रॉपर्टी, वही चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यहां भी अप्लाई होती है और फार्मूला भी वही लगभग सेम है. सॉल्यूशन, सिंस FES of any function fx is equal to 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity ft e to power ist dt. So f of ax का 2 pi minus infinity to infinity at e to power ist dt. Let at is equal to, so a dt is equal to du. Using this in above equation, f of ax under root 2 pi minus infinity to infinity f of u e to power is into u by a and du by a. This be equal to 1 upon a under root 2 pi minus infinity to infinity f of u e to power is upon a u du. अब आप अपनी डिफिनीशन में देखें, ये इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहां पर देखिए बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है. t की जगह u है, यहां भी t की जगह u है, s की जगह s बाई a. जब ये s था तो यहां FES हुआ, यहां s बाई a है तो ये आपका हो जाएगा f of ax 1 upon a f of s by
This is the proof. This is the change of scale property. Further, shifting property. Shifting property. Shifting property. If FPS is Fourier transform of fx, then Fourier transform of fx minus a, Fourier transform of fx minus a is equal to e to power isa fs, एंड इसी को हम लिख सकते हैं isa f ऑफ fx. ठीक है, तो दिस इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अब इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यूज करें भाई इसमें, देखिए क्या होता है. ठीक है, सो व्हेन वी यूज, सिंस solution is the fs is 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity cos of ft ist dt. So f of fx minus a 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity f of t minus a ist dt. Now let t minus a is equal to u. This implies that dt is du. Substitute this initial condition. Substitute this initial condition. Substitute this initial condition. We have x minus a, this will be equal to 1 upon under root 2 pi in limit of the integration. When t is minus infinity, u is minus infinity, and when t is infinity, its value is infinity. F of u e to power is u plus a d. This will be equal to 1 upon under root 2 pi minus infinity to infinity f of u isu plus isa d. 1 upon under root 2 pi infinity fu isu isa d. Isa is the independent with respect to du e to power
ISA 2 pi minus infinity to infinity FU e to power ISU du, this will be equal to ISA f of s, and this f of s is fx. fx, तो ये आपकी हो गई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये वेल नोन प्रॉपर्टीज थी जो कि ज्यादातर इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म में यूज किया जाता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस प्रॉपर्टी में आता है जिसका ज्यादातर यूज क्वेश्चंस में कई जगहों पर मिला है। तो इसी प्रॉपर्टी में हम इसको समझ सकते हैं कि वो क्या है, और उस प्रॉपर्टी का हम आगे जाकर के डायरेक्ट फार्मूले में यूज करेंगे। तो दैट प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी f of s fx sin of sx, this be equal to fc of s minus a minus of fc of s plus a, यानी this s represent Fourier sine transform and this c represent Fourier cosine transform। तो अब इसके इस फार्मूले को हम कैसे यहाँ पर यूज करना है ये हम आपको बता रहे हैं कि इसका प्रूफ कैसे है और आगे चल के इनको हमको कैसे इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो ये वेल नोन प्रॉपर्टी है फूरियर ट्रांसफॉर्म की स्पेशल प्रॉपर्टी कि fx sin sx का साइन ट्रांसफॉर्म, fx sin sx का साइन ट्रांसफॉर्म इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके सॉल्यूशन में आए, सॉल्यूशन देखें इसका। तो सिंस फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म of any function is under root 2 upon pi 0 to infinity ft sin of st dt. So f of s fx sin of sx under root 2 upon pi 0 to infinity ft sin of, सॉरी a, यहाँ a है, ये a इससे बैलेंस्ड a sin of at sin of st d, yeah, this will be under root 2 upon pi 0 to infinity ft, this is sin a into sin b। तो आपको 2 sin a sin b का फार्मूला पता है, दैट इज cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b। तो इट विल बी 1/2 cos of a minus s into t minus of cos of s plus a into t dt, this be under root 2 upon pi 0 to infinity 1/2 ft cos of
cos of minus s minus a into t dt minus of 0 to infinity ft cos of s plus a into t dt। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। So this be equal to 2/5 2 pi। अब आप ध्यान दें यहां पर, तो cos minus theta is cos theta, so 0 to infinity ft cos of s minus u t dt minus of 0 to infinity ft cos of s plus a dt 1 upon under root 2 pi। एंड याद होगा आपको फार्मूला कि फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन FCS is equal to under root 2 upon pi 0 to infinity ft cos of st dt। यहाँ st की जगह s minus a है, so it will be under root pi by 2 f of c s minus a minus of under root pi by 2 f of c s plus a। Since we know that fc of s is under root 2 upon pi 0 to infinity ft cos of st dt, so under root pi by 2 FCS is equal to 0 to infinity ft cos of st dt। This implies that under root pi by 2 fc of s minus a is 0 to infinity ft cos of s minus a t dt। इसी चीज का हमने यहां पर यूज कर लिया है। तो अंडर रूट पाई बाई 2 इज द कॉमन, बाहर हो गया तो अंडर रूट पाई विल बी कैंसिल आउट एंड अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज 2, दिस बी 1 by 2 f of c s minus a minus of f c s plus a। So this is very important result। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको क्वेश्चंस में कहीं कहीं यूज करने को मिलेगा। सम डिफरेंट टिपिकल टाइप क्वेश्चंस तो थोड़ा सा टिपिकल होंगे, तो उसका यूज करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज दैट क्वेश्चन विल बी टेक लॉन्गर टाइम टू इवेल्युएट दैट सॉल्यूशन। सो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम मॉड्यूलेशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक ऐसी ही प्रॉपर्टी दूसरे ट्रांसफॉर्म के केस में दिया गया है, दैट इज एक प्रॉपर्टी ये है सिमिलरली वी कैन प्रूव f of c fx
sin of ax, this will be equal to 1 upon 2 f of s plus a minus of f s minus a. This is second property. Third, f of s fx cos of ax, this will be equal to 1 upon 2 f of s plus a f of s minus a. ये तीन स्पेशल प्रॉपर्टी हैं मॉड्यूलेशन थ्योरम के, जिनको हम कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज करते हैं। एंड इन्हीं तीनों को कंबाइंडली, ये आपके देखिए साइन ट्रांसफॉर्म का केस है, ये भी साइन ट्रांसफॉर्म के केस में, ये भी कोसाइन ट्रांसफॉर्म के केस में। इसको जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के बेस पे लिखते हैं तो इसी को हम लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। यही वाली चीज जब कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म के केस में जाते हैं तो डायरेक्टली इस चीज को कंबाइंडली इस फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज cos ऑफ ax 1 upon 2 f of s plus a plus of s minus a। ये चारों एक जैसे हैं, ऊपर वाला साइन कोसाइन के टर्म का है एंड लास्ट वन इज द फॉर द फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये चारों ही वेल नोन प्रॉपर्टीज हैं जिनका आपको फर्दर यूज करना है, जिसका नाम दिया जाता है मॉड्यूलेशन थ्योरम। और ये चारों ही मॉड्यूलेशन थ्योरम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। तो आपको अपनी मेमोरी में रखना होगा कि जब साइन ट्रांसफॉर्म दिया जा रहा है तो ये कॉस के साथ होगा, पहले s माइनस ए वाला टर्म आएगा, देन माइनस s प्लस ए वाला टर्म जाएगा। जब कोसाइन ट्रांसफॉर्म के साथ जाएगा तो प्लस वाला टर्म पहले आएगा, माइनस वाला टर्म बाद में जाएगा। और जब साइन ट्रांसफॉर्म के साथ कॉस जुड़ा होगा तो इन दैट केस बोथ आर पॉजिटिव। तो इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड्यूलेशन थ्योरम। नाउ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की। यदि कोई टर्म x टू पावर n के टर्म का उस फंक्शन में प्रोडक्ट होगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा भी है कि इफ f of fx is fs, then f of x to power n of fx, this will be equal to minus I to power n dn dsn of fs। ठीक यही प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है किसमें? लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, सेम एज। सो आप वहां से इस चीज को गवर्न करेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे इन चीजों को वैसे किया जा रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन के केस में क्या होगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x fx dx this be of fs upon minus of is, where fs is Fourier transform of fx, Fourier transform of fx। इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी फूरियर ट्रांसफॉर्म की जिनका आपको यूज करना है
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक वैसे ही कन्वोल्यूशन थ्योरम है जैसा कि आपने लाप्लास में पढ़ा है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है और उसका प्रूफ क्या होगा। ओके, थैंक यू।